چاہتا ہوں آئے میرے ساتھ خدا ان کے زندہ مقدس کلام کو کھولیے سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 17واں باب چیپٹر 17 سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 17واں باب اس کی 28ویں آیت سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے اور خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام میں اس طور سے مرقوم ہے. اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا سنا اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی میں تیرے گھمائیں اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں تو لڑائی دیکھنے آیا ہے. داؤد نے کہا میں نے اب کیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا. اور داؤد نے اب غور سے سنیے اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا. ساؤل نے داؤد سے کہا تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تب اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا سو یہ نامختوم فلسطی ان میں سے ایک ہی مانند ہوگا اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. ساؤل نے داؤد سے کہا جا خداوند تیرے ساتھ رہے. آج شام خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا یہاں پر موجود ساری زندگی کے لیے برکت کا باعث رہے اور جماعت مل کر کہے آمین آمین. آج شام ہم پھر گیونگ پر بات نہیں کر پائیں گے. آج شام ہم پھر ریولیشنری طور پر مکاشفاتی طور پر خدا کی ہارٹ بیٹ کے مطابق کتنے لوگ ہارٹ بیٹ سے واقف ہیں دل کی دھڑکن کتنے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ God is a living God خدا زندہ خدا ہے اور خدا زندہ خدا ہے and God has a heart اور خدا کے پاس ایک دل ہے گوشت اور پوست کا نہیں جیسے کہ آپ کا اور میرا ہے but God has a heart and God has desires. خدا کا باطن ہے خدا کے پاس ایک دل ہے اور خدا کے پاس آپ کے لیے desires God desires for you. خدا آپ کے لیے خواہشات رکھتا ہے اور اس کا دل مستقل طور پر آپ کے لیے دھڑکتا رہتا ہے. It beats for you. کسی کے دل کا دھڑکنا جو ہے وہ اس کے زندہ رہنے کی ضمانت ہوتا ہے. Am I right? Yes. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے زندہ رہنے کی وجہ آپ ہے. وہ آپ کے لیے زندہ ہے وہ آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے حیات ہے. He loves you so much. جب میں یہ کہوں کہ خدا اپنی ہارٹ بیٹ کو شیئر کرنا چاہتا ہے خدا اپنے دل کی لالسا اپنی ڈیزائر اپنے دل کی دھڑکن جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہے it means God has something special for you tonight. آج شام خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ خاص ہے. جو سرمن میں آپ کے سامنے پریچ کرنے کو ہوں اٹس the very first time کہ میں اس پر بات کرنے کو ہوں اور یہ میرے لیے بھی بالکل نیا تھا چونکہ اس کا تجربہ مجھے چند ہفتے پہلے ہوا. چند ہفتے پہلے جب میں خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہا تھا غور سے سنیے تو روح القدس نے میرے باطن میں ایک بات مجھے کہی اور خدا نے کہا I am going to give you new opportunities. I am going to give you new opportunities. میں نئے مواقع
तेरी जिंदगी के अंदर तुझे दे दूंगा। लफ्ज अपॉर्चुनिटीज बड़ा आम लफ्ज है, आपने सुना होगा, आपने इसको पढ़ा होगा। मौके, अगर मैं इसको एक और सादा लफ्ज में बयान करूं, वो ऐसे है कि जब खुदा आपको मौके फराहम करता है तो खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता है। तो जब खुदा ने ये कहा कि आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैं नए मौके तुझे फराहम करने को हूं, तो ये गोया इस तौर से था कि मैं नए दरवाजे तेरे लिए खोल दूंगा। और कितने लोग हैं जो अपनी मुनाजात में, अपनी दुआओं में खुदा से ये अक्सर कहते हैं कि खुदा तू मेरे लिए दरवाजे खोल और तू मुझे मौके फराहम कर। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ जो अपनी मुनाजात में, अपनी दुआओं में खुदा से ये कहते हैं, Lord, give me opportunities, open the doors for me, मेरे लिए दरवाजे खोल। हम नए मौके चाहते हैं खुदा से, हम चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए नए दरवाजे खोले। वो हिदमत के हो सकते हैं, वो सक्सेस के हो सकते हैं, कामयाबी के हो सकते हैं, आगे बढ़ने के हो सकते हैं, किसी भी तौर से वो तरक्की के दरवाजे आपके लिए हो सकते हैं। और जब खुदा ने ये बात मुझसे की तो उसके बाद कुछ दिन गुजर गए, और 4 दिन बाद जब मैं दोबारा अपने घुटनों पर था और दुआ कर रहा था शाम के वक्त, तो रूह कुद्स ने मुझसे कहा, अब जो रूह कुद्स ने मुझसे कहा वो मेरे सवाल के जवाब में कहा, और मैं दुआ में था तो मैंने खुदा से कहा, खुदा तूने चंद दिन पहले एक बात मुझसे कही थी, और वो बात ये थी कि आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैंने मौके तुझे फराहम करने को, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद अभी तक कोई मौका जो है वो मेरे सामने नहीं आया, कोई दरवाजा मेरे सामने नहीं खुला। जब मैंने अपनी बात खत्म की, खुदा दोबारा मुझसे हुआ, अब गौर से सुनिए। उसने कहा, माई लैंग्वेज इज डिफरेंट देन योर्स, मेरी जुबान तेरी जुबान से मुख्तलिफ है। आई स्पीक डिफरेंटली, मैं मुख्तलिफ तरह से बोलता हूँ। मैंने गौर किया कि मैं खुदा की टर्मिनोलॉजी, खुदा के बोलने के ताल्लुक से कितना कुछ जानता हूँ, और कई साल पहले मैंने प्रोफेटिक टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़रा पढ़ा, लेकिन तो भी मैं आपको बताऊं, खुदा की वोकैबुलरी इस कदर वास्ट है, खुदा के पास अल्फाज का ज़हीरा इस कदर ज़्यादा है कि हमारी ज़िंदगी, और मैं समझता हूँ उसके बाद जो अब्दियत का पूरा अरसा है वो भी कम है कि हम खुदा को मुकम्मल तौर पर जान पाए। गॉड इज सो ह्यूज, खुदा इस कदर बड़ा है, खुदा इस कदर वसअत रखता है, और खुदा ने कहा तुझे ज़रूरत है कि तू मेरी ज़ुबान को समझे। और मैंने कहा खुदा मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न। और खुदा ने कहा मैं रोज़ाना तेरी ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को भेजता हूँ। इस बात ने मुझे हिला दिया। आज शाम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात खुदा ने मुझे कही वो हर एक बलीवर के लिए है, वो हर एक ईमानदार के लिए है। मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से मुख्तलिफ है, मेरी ज़िंदगी के क्राइसिस आपसे मुख्तलिफ है, मेरी सिचुएशन आपसे मुख्तलिफ है, मेरी चैलेंजेस आपसे मुख्तलिफ है, मेरी जंगें आपकी जंगों से मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि खुदा हम सबों के लिए अपॉर्चुनिटीज रखता है, खुदा हम सबों के लिए मौके रखता है, खुदा हम सबों के लिए नए दरवाजे जो है खोलना चाहता है। और जब खुदा ने मुझे ये कहा कि मैं रोजाना तेरी जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज भेज रहा हूं, तो मैंने कहा लॉर्ड हाउ, कैसे? मैं नहीं देख सकता। खुदा ने कहा मेरे लोग एक्चुअली ये तो करते हैं कि जब रात को उनसे ये कहूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक कि मैं अपॉर्चुनिटीज को तेरी जिंदगी के अंदर भेजने को हूं, तो एक्चुअली वो ये इंतजार करते हैं कि कल से वो ऐसा होगा कि कॉल जो है वो आएगी। आप बेरोजगार हैं, खुदा आपसे कहता है कि मैं तुझे अपॉर्चुनिटी देने को हूं, तो हम रात को शुक्रगुजारी करके सो जाते हैं इस तवक्को के साथ कि अगली सुबह एक फोन कॉल आएगी और कोई हमें कहेगा कि प्लीज कम टू अस, हमारे पास आइए, हमारे पास आपको देने की नौकरी है, वी हैव अ फ्यूचर फॉर यू। और हम कहेंगे खुदा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। हम कहीं जाएंगे, हमें एक फेवर मिल जाएगी और हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे दरवाजे पर आए और नॉक करे और कहे हमारे पास आपको देने के लिए ये है, और हम कहेंगे दरवाजा हमारे लिए खुल गया है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है।
ये इंसानी सोच है, ये वो परसेप्शन है जो हम रखते हैं अपॉर्चुनिटीज और दरवाजों के ताल्लुक से। लेकिन खुदा ने कहा, लिसन केयरफुल, खुदा ने कहा जब मैं अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज भेजता हूं, तो एक्चुअली जब मैं उनकी जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज भेजता हूं, तो अब गौर से देखिए, मैं उनकी जिंदगी के अंदर impossibilities को भेज देता हूं। What? Impossibilities? What are impossibilities? I want to make it very sure कि मैं खुदा की आवाज सुन रहा हूं। मैंने खुदा से दोबारा बात की, मैं क्या खुदा हूं, क्या मैं तेरी ही आवाज सुन रहा हूं? Of course. That is God's terminology. ये वो जुबान है जो खुदा इस्तेमाल करता है। हम इस अक्सर लोग खुदा की आवाज को सुनने का तजुर्बा रखते हैं, लेकिन हम उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। कितने लोग इंटरप्रिटेशन के माने जानते हैं? तर्जुमा, तशरीह। कितने लोगों ने कभी मुझे इंटरप्रेट करते हुए सुना या देखा है, तर्जुमा करते हुए? अगर मैं किसी अंग्रेज का तर्जुमा कर रहा हूं, फर्ज करें आपको अंग्रेजी ना आती हो, फर्ज कीजिए आपको अंग्रेजी ना आती हो, आप में से अक्सर को आती है, आप समझ सकते हैं, लेकिन फर्ज करें कि आपको अंग्रेजी ना आती हो, तो आप वही सच समझेंगे जो मैं आपको बताऊं। मैसेज को लेना काफी नहीं है, मैसेज की इंटरप्रिटेशन उससे ज्यादा जरूरी है। जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, प्रोफेटिक के अंदर खुदा की आवाज को सुनने का जब तजुर्बा करते हैं, वो तो आपसे बोलता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले, वो ड्रीम्स हो या वो विजन्स हो या वो नबूवत हो या कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ मैसेज को सुनना काफी नहीं है, मैसेज की इंटरप्रिटेशन उससे भी ज्यादा अहम है। अगर आप दुरुस्त मैसेज की गलत इंटरप्रिटेशन करें, मैसेज आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। थक तो नहीं गया? आज की बातें थोड़ी सी हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन मैं को काफी आसान करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सो खुदा ने मुझे कहा कि वो मुझे क्या दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज, और एक्चुअली वो मेरी जिंदगी के अंदर क्या भेजना शुरू कर रहा था, इम्पॉसिबिलिटीज। उसने कहा माय इम्पॉसिबिलिटी इज योर अपॉर्चुनिटी। वो नामुमकिन जो मैं तेरे आगे खड़ा करूंगा, वो तेरे लिए एक दरवाजा खोलेगा। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? खुदा ने मजीद बात को उसने कहा, there is no testimony without a test. No test, no testimony. जब तक कोई इम्तिहान में से ना गुजरे, उसके पास कोई गवाही भी नहीं होती। उसने कहा इससे पहले कि इब्राहिम को इसहाक मिलता, सारा को भांज होना जरूरी था। Make sense? इससे पहले कि कोई मफलूज अपनी व्हील चेयर पर से उठे, उसको अपनी टांगों की कुव्वत और जान को खोना जरूरी है। इससे पहले कि आपकी रिपोर्ट में ये लिखा जाए कि ये मौजूदा है, आपको किसी लाइलाज बीमारी के अंदर से निकलना चाहिए। No test, no testimony. And God said, I am sending opportunities. मैं दरवाजे खोल रहा हूं। मैंने कहा खुदावन, जो मैं देख रहा हूं वो सिर्फ ये है कि जब से तूने ये बात मुझसे की है, I am facing more challenges. मैं अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा दबाव का और चैलेंजेस का सामना कर सकता हूं। मैं इस बात से वाकिफ हूं। मैंने कहा खुदावन, ऐसा क्यों नहीं होता कि जस्ट नॉक हो, कॉल आए, कोई आ जाए और कहे मेरे पास आपको देने के लिए पैकेज है। Every time God wants to upgrade you, गौर से सुनिए, हर दफा जब खुदा आपको अपग्रेड करना चाहता है, खुदा आपकी ग्रेडिंग को बढ़ाना चाहता है, He sends an impossibility. खुदा किसी नामुमकिन को आपके सामने खड़ा करता है। और हम में से बथेरे क्योंकि सिर्फ अपनी ही जुबान से वाकिफ होते हैं, हम प्रॉब्लम के साइज को मेजर करते रहते हैं, हम प्रॉब्लम के साइज को पैमाइश करते रहते हैं, गिनते रहते हैं, देखते उसका साइज कितना बड़ा है। और चूंकि हमारी नजरें फोकस्ड होती हैं इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर, हम
उस इम्पॉसिबिलिटी के पीछे आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते एंड वी क्विट। हम नामुमकिन को नामुमकिन कहकर कभी भी उसकी नामुमकिनात को मुमकिनात के अंदर तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, इट कांट बी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? कितने लोग हैं जिनको इस वक्त अपनी जिंदगी के अंदर किसी टफ सिचुएशन के साथ आए द फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। कितने लोगों को किसी टफ सिचुएशन का सामना है, उन्हें लगता है कि दिस इज हार्ड, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता। एक्चुअली वो खुदा की तरफ से आपको दी गई एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसको अवेल करेंगे या नहीं करेंगे, इसका डिसीजन ना तो हेवन करेगा और ना हेल करेगा, ना खुदा करेगा ना इब्लीस करेगा, इसका डिसीजन आप करेंगे। अगर आप ये डिसीजन करेंगे कि ये इम्पॉसिबिलिटी है, नामुमकिन है, तो जहन्नम की सारी कुव्वतें आपके साथ मिलकर हाथ मिलाएंगी कि आपको वहां से पीछे। अगर आप कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप वाला की कुव्वत आपके साथ मिल जाएगी ताकि आपको ब्रेक थ्रू देकर आपको अंदर जाओगे। Are you getting? मैंने एक वाक्य को आपके सामने पढ़ा है जो कि सैमुएल की पहली किताब में से है, और ये वाक्य एक तवील वाक्य है, बड़ा तफसील के साथ रकम किया गया वाक्य है। अगर आपके पास मौका हो तो घर जाकर इस पूरे फॉलो करिए, पूरे बाप को पढ़िए, पहला सैमुएल। लेकिन हमने जहां से इस इक्तबास का मुताला करना शुरू किया, मैं उसका सिनेरियो आपके सामने खींचना चाहता हूं। लेकिन कितने लोग इससे वाकिफ हैं कि दाऊद कौन था? कितने लोग दाऊद से वाकिफ हैं? दाऊद, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल की मर्जी के मुआफिक एक शख्स मिल गया जिसका नाम दाऊद है। दाऊद को हम कई एतबार से जानते हैं। वो एक शायर था, वो एक मौसीकार था, वो परस्तार था, वो जंगजू था, वो बादशाह था, वो नबी था, वो निगहबान था। बहुत सी बातें दाऊद के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि ही वॉज अ किंग, वो एक बादशाह था, ही वॉज अ वॉरियर, वो एक जंगजू था। और उसके जंगजू होने की क्वालिटी को, उसके वॉरियर होने की क्वालिटी को, उसके लड़ने के फन को आज शाम में उजागर करना चाहता हूं आपके साथ। बाइबल बयान करती है कि इस्राएल का पहला बादशाह साउल था। इस्राएलियों ने खुदा से कहा कि हमें दूसरी कौमों की तरह एक बादशाह चाहिए, और वो उस वक्त के नबी सैमुएल के पास आए और सैमुएल से कहने लगे, गिव अस अ किंग, हम एक बादशाह। और सैमुएल ने कहा, खुदा खुद तुम्हारा बादशाह है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमें दूसरी कौमों की तरह, गैर कौमों की तरह एक इंसानी बादशाह चाहिए जो गोश्त पोश का हो, जिसको हम अपनी आंखों के सामने देख सकें, छू सकें। जिस तरह बाकी कौमों के बादशाह हैं, हमें भी बादशाह दें। और सैमुएल ने खुदा से बात की और खुदा ने उनकी जवाब में उनको साउल दे दिया। साउल इस्राएल का पहला बादशाह था। और बाइबल बयान करती है कि वो थोड़ी देर ही इक़्तिदार पर कायम रह सका, क्योंकि उसके गुनाह, उसकी बगावत, उसकी गर्दनकशी और वो तमाम तक टेढ़ापन जो उसकी जिंदगी के अंदर था, वो उसको उसकी जगह, उसकी पोजीशन और उसकी अनॉइंटिंग के अंदर कायम ना रख सका। खुदा ने उसको अनॉइंटेड बनाया, उसको ममसूब बनाया, उसको मसा किया, बट ही लॉस्ट हिज पोजीशन, उसने अपनी जगह को खो दिया। Listen carefully. If you are anointed, you can lose your position. अगर आप ममसूब हैं तो एक बात को जान लीजिए, खुदा आपसे किस कदर मोहब्बत करता है एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी प्लेस, अपनी पोजीशन, अपनी जगह को लूज कर सकते हैं। साउल डिड इट। साउल ने अपनी जगह को खो दिया, अपनी हमाकत, अपनी गलतियों और अपने कामों की वजह से। जिस तरह से साउल ने अपनी जगह को खोया, कोई भी 91 अपनी जगह को खो सकता है। नंबर 2, साउल ने जब अपनी जगह को खोया तो बाइबल बयान करती है, खुदा सैमुएल से हम कलाम हुआ, और सैमुएल जो कि साउल के लिए मातम कर रहा था, खुदा उसके पास पहुंचा और उसे कहने लगा, सैमुएल तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल में कि मैंने उसे रद्द किया है कि अब वो मेरे हुजूर इस्राएल का बादशाह ना हो। सो तो उठ,
और यस्सी के घर जा, और यस्सी के घर जाकर एक काम कर, उसके बेटों में से एक को जिसको मैं तुझे कहूं मसा कर कि आइंदा को वो साउल की जगह इस्राएल का बादशाह हो। बाइबल बयान करती है कि सैमुएल अपनी कुप्पी के अंदर तेल डालता है और वो यस्सी के घर पहुंचता है और यस्सी से कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है क्योंकि वो तेरे बेटों में से किसी एक को साउल की जगह इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करना चाहता है। सो यस्सी अपने सारे बेटों को बुलाता है, और जब अपने बेटों को बुलाता है तो सबसे पहले जो नजर है सैमुएल की वो एलियाब पर पड़ती है। और एलियाब की हिस्ट्री ये है कि वो एक जसीम, सूरमा, जंगजू, कद्दावर और एक अच्छी शख्सियत का मालिक था। सैमुएल ने जो ही उसको देखा वो समझा कि यही खुदा उनका ममसू है, और इससे पहले कि वो अपने तेल की कुप्पी को लेता और तेल को उसके सर पे डालता, बाइबल बयान करती है खुदा ने इंटरवेंशन की, खुदा ने मुदाखलत की। खुदा बोला कि सैमुएल ये वो राइट पर्सन नहीं है जिसको तुम मसा करने लगा है, मैंने इसको नहीं चुना बल्कि वो कोई और है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उन छह में से कोई भी नहीं जिसको खुदा ने चुना हो। सो वो यस्सी से कहता है क्या तेरे 6 बेटों के अलावा कोई और बेटा भी है? उसने कहा एक और है और उसका नाम दाऊद। जिस वक्त के सैमुएल खुदा के भेजने के मुवाफिक, लिसन केयरफुली, यस्सी के घर पहुंचा, दाऊद वहां पर मौजूद नहीं था। समटाइम्स हम जब प्रोफेटिक पीपल होते हैं वी मेक मिस्टेक्स। खुदा ने दुस्तगी की सैमुएल की और उसने कहा सैमुएल तेरा देखने का अंदाज और है और मेरा देखने का अंदाज और है। तू देख रहा है इसके जिस्म को और मैं देख रहा हूं उसको, इसकी रूह को देखता हूं जिसको मैं चुनने को। और खुदा ने कहा इंसान जाहिर को देखता है लेकिन मैं जो खुदा हूं मैं बातिन को देखता हूं, मैं दिल को देखता हूं। दूसरी बात, सैमुएल सोच सकता था कि मेरी मैं किसी गलत एड्रेस पर पहुंच गया क्योंकि वो शख्स तो घर पे ही मौजूद नहीं है। क्या खुदा जानता था कि जब वो यस्सी के घर पहुंचेगा तो दाऊद वहां पर नहीं होगा? What do you think? कि सैमुएल के पहुंचने से पहले क्या वहां पर दाऊद को पहुंचना चाहिए था? लेकिन दाऊद वहां पर था, दाऊद वहीं पर था जहां पर दाऊद को होना चाहिए था। और being prophetic people, पांच बात हम कहते हैं वो मे बी मैं यहां पर आया हूं, वो शख्स तो यहां पर है ही नहीं है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। You need to wait. आपको इंतजार करने की जरूरत है। I need to consult with God. आपको खुदा से बात करने की जरूरत है। और सैमुएल ने उस वक्त खुदा से बात की, खुदा ने कहा there is someone else, कोई और है, और उसको बुलाया गया। यस्सी भी सोच रहा होगा कि मेरी सैमुएल गलती करने लगा है, क्योंकि जिसको बुलाया गया है कि वो इस्राएल का बादशाह हो वो तो बादशाह दिखता ही नहीं है, उसकी लुक बादशाह वाली नहीं है, उसका बदन बादशाह वाला नहीं, वो तो ना तजुर्बाकार है, उसको जंग का इल्म ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? यस्सी ने भी अपनी जुबान से इस बात का इतराफ ना किया हो, लेकिन उसके बातिन के अंदर ऐसे ख्याल जो है वो उठ रहे होंगे। उसके भाई भी सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रॉफिट इस दफा कोई मिस्टेक तो नहीं करने लगा, लेकिन वो खुदा की क्लियर आवाज को सुन रहा था। और जो ही दाऊद को बुलाया गया, खुदा ने कहा ही इज द वन, ही इज द वन, ये वो शख्स है जिसको मैंने चुना है। अब बॉस, एक घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, एक फैमिली के अंदर दाऊद को मसा किया जाता है और सैमुएल अपनी तेल की कुप्पी को लेता है और उसके सर पर ढेलता है और कहता है यू आर द अपकमिंग किंग, तू मुस्तकबिल का इस्राएल का बादशाह है, साउल के बाद तू होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सैमुएल को चाय पिलाई या नहीं, जैसे आप मुझे पिलाते हैं, गॉड ब्लेस यू, लेकिन सैमुएल रवाना हो। और जैसे ही सैमुएल चला गया, दाऊद ने सबसे कहा कि मैं आप ऊपर बैठूंगा और तुम सब नीचे बैठोगे, आई एम द किंग। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? उसका बाप भी नीचे होगा, उसके भाई भी नीचे होंगे, आई एम द किंग, मैं बादशाह हूं। उसके सर पर तेल डाला गया, किसने डाला? खुदा ने। उसको मसा किसने किया? खुदा ने। उसकी लाइफ में किंग होने की कॉलिंग किसकी थी? खुदा की। लेकिन उस वक्त वो किसी थ्रोन पर नहीं था, लिसन केयरफुली, वो किसी तख्त पर नहीं था, कोई ताज उसके सर पर नहीं था और कोई शाही पोशाक या चोगा उसके बदन के ऊपर नहीं था। वो सो गया और दोबारा उसके घर के अंदर रेवड़ में बकरियां और भेड़ें थी, उसने उनको लिया और वो दोबारा उनको पहाड़ पर लेकर चला। Am I right?
There is a time of your anointing. आपके मसा का एक वक्त है. अब मैं 2 लफ्ज आपके लिखने लगा हूं, उनको गौर से देखिए. Anointment जिसको कहा जाता है मसा. Anointing भी क्या है? Appointment, तकर्री. मसा क्या होता है? पहले इससे बात शुरू करते हैं. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. अलग में चलिए. कुछ साल पहले मैं सवाल किया करता था कि मसा क्या होता है, तो मुझे जवाब मिला करता था जब हाथ रखते हैं तो लोग गिर जाते हैं तो वो बंदा मसा हो जाता है. आपका क्या कहना है इस बारे में? तवानाई कुव्वत और बोलिए जो भी आपके जहन में है वो निकालिए बाहर. किसी को किसी चीज के लिए मुकर्रर करना. थिंक अबाउट इट. आप लोग पेंटिकॉस्ट में सबसे ज्यादा इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं. मसा होता क्या है? कितने लोगों को मसा किया गया है? खुदा ने मसा किया. तो वो क्या है? अभी मैं ममसूम हूं, तो कोई आपसे पूछे ममसूम होने का मानी क्या? तो मुझे मसा किया गया है. जी आपको क्या किया गया है? मसा. जी सादा अल्फाज में बताइए क्या किया गया है? वो जी मैं गिर गया था. आप किसको बताएंगे? मैं कहूँगा ये तो बड़ी गलत बात है, आप गिर गए, भाई चोट तो नहीं लगी आपको. आप किसी एक आम शख्स को कैसे समझाएंगे, किसी गैर मसीह को कैसे समझाएंगे कि मसा क्या होता है? आप कहेंगे मैं खुदा का चुना हुआ. आगे चलो, अभी तक बात नहीं बनी. सुन, महसूस किया हुआ. ये तो वही बात होगी ना, ममसूस या मसा किया हुआ या महसूस किया हुआ. सुन लीजिए, एनाइंटमेंट क्या होती है. नंबर 1, मसा आप किसी खास काम के लिए किए जाते हैं. मसा आपकी कॉलिंग के ऊपर आता है. मसा आपके बुलावे के साथ मुताल्लिक होता है. मसा उस जिम्मेदारी के साथ मुताल्लिक होता है जिसके लिए आप बुलाए जाते हैं. गैर जुबानों का कोई मसा नहीं होता. गैर जुबान नेमत है. नबूवत का कोई मसा नहीं होता. नबूवत एक नेमत है. शिफा का मसा, ये हम कहते हैं, सुन लीजिए, शफाइया खिदमत के ऊपर मसा आता है जो एक एनाइटिंग होती है. नबूवती खिदमत के लिए मसा आता है जो प्रोफेटिक एनाइटिंग होती है. आप सुन रहे हैं? अगर कोई उस्ताद है तो उसको उस्ताद होने के लिए मसा किया जाता है और उसको वो जो कुव्वत मिलती है, जो कुदरत मिलती है, जो कुछ उस्ताद होने के लिए उसको चाहिए, वो उस मसा के पैकेज के अंदर शामिल होता है. एक मुबश्शिर को जब मुबश्शिर होने के लिए मसा किया जाता है तो उस मुबश्शिर को बशारत के लिए, शिफा के लिए, अजीब कामों के लिए, मौजज़ात के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसके मसा के अंदर शामिल है. ठीक, ये मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूं. मसा वो डिवाइन एबिलिटी है, वो आलम बाला की कुदरत और काबिलियत है जो सिर्फ आसमान आपको दे सकता है, कोई बशर नहीं दे सकता. लाइफ में हिदमत के लिए आप सिर्फ एक दफा ही अनाइंट किए जाते हैं. कीप इन माइंड, मुझे जब ऑर्डेन किया गया या मुझे जब अनाइंट किया गया, दैट्स वन एंड फॉर ऑल. वो हमेशा हमेशा के लिए है और एक दफा के लिए है, मुझे दोबारा उसकी जरूरत नहीं है. लेकिन खुदा से फ्रेश अनाइंटिंग लेने की हमें हमेशा जरूरत होती है और उस मसा के मानी इस मसा के मानी से मुख्तलिफ है. मसा की टाइप्स है, 90 की टाइप्स होती हैं, लेकिन यहां मैं अपनी बात से हटने वाला नहीं, मैं फोकस रहना चाहता हूं. दाऊद को मसा किया गया इस्राएल का बादशाह होने के लिए. सो उसके जिम्मे काम था और वो काम क्या था? इस्राएल का क्या हो? बादशाह. लेकिन जिस दिन उसको मसा किया गया, क्या उसी दिन उसकी अपॉइंटमेंट हो गई? आप में से बथेरे आज इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जिनकी अनाइंटमेंट हो चुकी है. मे भी साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 माह पहले, 1 माह पहले, लेकिन अभी तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई.
अपॉइंटमेंट तब होना जब आप उस जगह पर बैठे हो जिसके लिए आपको मसा किया गया है। आर यू गेटिंग मी? दाऊद की अनाइंटमेंट सेहन के अंदर होती है और उससे उसकी फैमिली के अलावा कोई भी वाकफ नहीं। लेकिन दाऊद की तकर्री अभी तक नहीं हुई। दाऊद यहां पर है और खुदा चाहता है कि वो अनाइंटमेंट से अपॉइंटमेंट पर आए। पहली बात ये, बहुत से लोग इस दरमियानी पीरियड के अंदर बड़े ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं लगती कि खुदा ने बुलाया भी है, खुदा ने मसा भी किया है, सैमुअल साहब आकर तेल भी उसा के ऊपर गिरा गए हैं, लेकिन अभी तक वो जगह मुझे नहीं मिली जिस जगह के लिए मुझे बुलाया गया है। आर यू गेटिंग मी? मैं कब वो बनूंगा जो मुझे होने के लिए मसा किया गया है। आपको किसी ने कहा कि आप ममसूम हैं, इस काम के लिए खुदा आपको बुला रहा है, लेकिन अभी तक वो काम आप नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर खुदा आपसे वो लेने को है। सो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि अंग्रेजी में कहते हैं इफ गॉड कैन अनाइंट यू ही कैन अपॉइंट यू। और अगर खुदा आपको मसा कर सकता है तो वो आपको तकर्री भी दे सकता है। जस्ट होल्ड ऑन। अपने हाथों को ऐसे कीजिए, अगर होल्ड ऑन, फिर कहिए होल्ड ऑन, दोबारा कहिए होल्ड ऑन। ऊंची आवाज में कहेंगे तो बात बनेगी। होल्ड ऑन के मानी क्या होते हैं? थामे रखो, थामे रखो, डोंट लीव, छोड़िए मत। इस वक्त के अंदर यू हैव टू होल्ड ऑन, डोंट लीव, डोंट लीव। अपनी जगह को, अपने मसा को मत छोड़िए। डोंट लूज योर पोजीशन, अपनी जगह को मत छोड़िए। हर गुजरने वाला दिन आपको आपकी अनाइंटमेंट से अपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट? कितने लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं? आई एम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट का सामना किस किस को लाइफ में करना पड़ा है? क्या होती है? ये भी बता दें। अच्छा, अंग्रेजी आपको ज्यादा आती है, ये मुझे पता चला। क्या होती है डिसअपॉइंटमेंट? मायूसी। कितने लोगों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा है, नाउमीदी का सामना करना पड़ा है। अच्छा, मायूसी क्या होती है? ये बड़ी मजेदार बात है कि हम लगा कि मैं बड़ा मायूस हूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपको वाकई पता कि आप क्या हैं। मायूसी क्या होती है? जब कोई हल नहीं, ये मायूसी नहीं। मायूस आप किस चीज से? That's the right answer. Perfect. Very right. I will give you 100 rupees. जब आप किसी चीज की तवक्को करते हैं, वो चीज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, आपने पहले तवक्को रखी होती है कि ऐसा होगा, and that doesn't happen. वो नहीं होता, you get disappointed. लेकिन disappointed बंदा तब होता है जब बंदा appointed नहीं होता। Got it? अपॉइंटमेंट से पहले तो डिस हटा दे तो आपकी अपॉइंटमेंट बन जाती है, डिस लगा दे तो डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। ये सिर्फ लफ्जों का ही है, लेकिन ये मानों को जानना बहुत जरूरी है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखता, वो अपॉइंटमेंट रखता है। अगर खुदा ने आपको अनाइंटमेंट दी है तो आपको अपॉइंटमेंट भी देना चाहता है, और खुदा आपके लिए अपॉइंटमेंट रखता है। जस्ट होल्ड ऑन। और दाऊद एक अच्छा शख्स था, ही हेल्ड ऑन, उसने थामे रखा। किसको? प्रॉमिस ऑफ गॉड को। उसने थामे रखा। किसको? अनाइंटिंग ऑफ गॉड को। उसने थामे रखा उस कॉलिंग को जो उसकी जिंदगी के अंदर है। नाउ लिसन केयरफुली। आपकी अनाइंटमेंट और आपकी अपॉइंटमेंट के दरमियान एक दौर होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ये दौर जो है इसको कहते हैं ट्रांजिशन। कितने लोग लफ्ज ट्रांजिट से वाकिफ हैं? ट्रांजिट ये क्या होती है? ट्रांजिट क्या होती है? अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया था वो बताएं ट्रांजिट क्या होती है। आपने भी खड़ा किया। थोड़ी देर के लिए रुकना किसी जगह पर, ठहराव आ जाता है। ठहराव। मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिट क्या होती है। ये ऐसे भी है जैसे आप लाउंज कहते हैं, एयरपोर्ट लाउंज। मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप लाहौर एयरपोर्ट में जाना, आपने न्यूयॉर्क है। जैसे ही आप लाहौर एयरपोर्ट से अंदर एंटर हो जाते हैं, फर्स्ट करें आप फ्लाई करके आप दुबई पहुंच गए। दुबई आपको रुकना है, आप ट्रांजिट के अंदर है। आप दुबई में हैं। क्या आप लाहौर में हैं? यहां नहीं है। तो क्या आप जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में हैं? कि मैं के दरमियान में हूं। आप ट्रांजिट में हैं, आप ट्रांजिशन में से गुजर रहे हैं।
آپ درمیانی اجسام میں سے گزر رہے ہیں اور خدا ہر ایک شخص کے مسا اور اس کی تقرری کے اندر ایک پیریڈ رکھتا ہے جو پریپریشن کے لیے ہے، گڈ، جو آپ کی تیاری کے لیے ہے، آپ کے مزاج کو درست کرنے کے لیے، آپ کی بگڑی عادتوں کو درست کرنے کے لیے. میرے غلط آتا پہ کر چھڑ دے خدا باپ نہ میرے اندر بڑی ایگو ہے، اس بھائی کے اندر بہت ہے، میں نہیں کرتا، یہ سچ ہے. خدانے کا میں توڑ دوں، I will break you. I was the most proud person جو آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تک خدا مجھے توڑ رہا ہے. God is breaking me. God is breaking me and humbling me. خدا مجھے توڑ رہا ہے. آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں. He is doing his job. Okay؟ اور مجھے بھی آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود جانتا ہے اس کو کیسے توڑنا ہے. کل کو اپنی یہ نہیں میں آپ کو توڑ رہا ہوں چونکہ آپ کو ضرورت ہے. Let God do his job. خدا کو اپنا کام اپنے طریقے سے کرنے دیں. آپ میری مدد نہ کریں. ٹھیک؟ سنیں، آپ کے اندر وہ عادتیں آپ کے کردار میں، آپ کی شخصیت میں جو موافقت نہیں رکھتی، سن لیں، اس کام سے جس کے لیے خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ کو ٹرانزیشن میں سے گزارے گا. کتنے لوگ اس دور کو یاد کر سکتے ہیں جب ان کو مسا کیا گیا تھا؟ پکچرائز کریں کہ آپ کیسے تھے. شاید آپ نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوتا تھا. یو آر گڈ اسٹوری میکر، a liar. لیکن خدا نے اس کو بدلا اور آپ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے لیکن اس میں سے گزر رہے ہیں. اور کچھ جو یہاں پہنچ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں سے کیسے گزرے ہیں. Got it؟ لیکن بہت سے لوگ یہاں پر کوئٹ کر جانا چاہتے ہیں، چھوڑ دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے hold on. اب اس دور کے اندر خدا کچھ کرتا ہے. جانا چاہتے ہیں؟ خدا اپرچونٹیز دیتا ہے. اور خدا جب اپرچونٹیز دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ He sends impossibility. وہ یہاں پر کسی ناممکن کو کھڑا کر کہتا ہے گزر. میں گزر نہیں سکتا. You have to. تجھے گزرنا ہے. I can't. خدا میں نہیں گزر سکتا. You have to. تجھے گزرنا ہے. کتنے لوگ اس پروسیس میں ہیں؟ I'm speaking to the right people. خدا کہتا ہے میں تجھے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خدا میں نہیں بڑھ سکتا. ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے پیچھے سے دھکا ہوتا ہے. لیکن ہم پوری ریس سمجھتے ہیں. وہ اپنے قدموں کو دے کر کھڑے ہوں گے، آگے نہیں بڑھنا. آدمی بالا کی پوری قوت آپ کے پیچھے کھڑی ہے تاکہ آپ کو دھکیلے آگے جانے کے لیے، آپ کو بریک تھرو دے. لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے I can do it، خدا آپ کی مدد نہیں کر سکتا. خدا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے I can do it. میں کر سکتا ہوں. Lord I trust you. میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں. I can make it. یہ ہو سکتا ہے. This is possible. یہ ممکن ہے. I can go through. میں گزر سکتا ہوں. میں آگے بڑھ سکتا ہوں. میری اپ گریڈنگ ہو سکتی ہے. جب آپ کی یہ لینگویج ہوتی ہے خدا کہتا ہوں I'm with you. Got it? So داؤد صبح اٹھا اگلے ہی دن اور گلی میں باہر نکلا. اس نے کہا I am the king. میں بادشاہ ہوں. کل آپ اگر ایسی ہی حرکت اٹھنے کے بعد کریں، اپنی سڑک پر جا کے کہیں I am the next president، لوگ آپ کو پاگل خانے بھیج دیں گے. وہ ڈاؤٹ کریں گے. سنیے، آپ کو مسئلہ کون کرتا ہے؟ جس جگہ کے لیے مسا کرتے ہیں اس جگہ کا چناؤ کون کرتا ہے؟ ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہتا ہوں، خدا. آپ کو مسا کون کرتا ہے؟ خدا. اور اس جگہ کی تکرفی کون کرتا ہے؟ خدا. تو یہاں سے وہاں تک لے کے بھی صرف نہیں جا سکتا. آپ نہیں جا سکتے. آپ نہیں پہنچ سکتے. امپاسبل. آپ کا مسا خدا کی طرف سے، آپ کی تکرفی خدا کی طرف سے ہونی ہے. اور ان دو منزلوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بھی آپ حق تعالیٰ کے بغیر طے ہی نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں نبی ہونے کے لیے مسا کیا گیا ہے تو ہم اگلے ہی دن فرشتے دیکھیں، آسمان کو کھلا دیکھیں اور ہر ایک کا حال اس پر ظاہر کرنا شروع کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مبشر ہونے کے لیے مسا کیا گیا ہے تو اگلے دن ہمارے پاس کینیڈا سے انویٹیشن ہو اور ہم جہاز پر بیٹھے اور 50,000 کا مجمع ہمارے سامنے ہو اور ہم پریز دی لارڈ کہیں اور اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں جس کام کے لیے مسا کیا گیا ہے کل ہم وہ کر رہے ہوں. اور داؤد کی بھی یہ خواہش ہوگی، لیکن داؤد جانتا تھا how to hold on.
اس کو بلایا کس لیے گیا ہے؟ بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ محل میں ہے. اس کی جگہ کون سی ہے؟ محل. بلایا کس لیے گیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جگہ بدلتی رہے گی. جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا آپ کی نظریں صرف اسی پر ہونی چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ پیلس. یو آر کال فار دیٹ. اس کی سادہ سی مثال یہ دیتا ہوں، آپ کی کالنگ کیا ہے؟ آسمان کے باسی ہونا. آپ کی نظریں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ آسمان پہ، لیکن لگی رہتی ہیں نیچے. یہاں کے کاموں میں، یہاں کے لوگوں میں، یہاں کی اٹھ پٹانگ باتوں میں، اس لیے ہم یہی ہو جاتے ہیں. Am I right؟ لیکن جن کی نظریں اوپر لگی ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہماری کالنگ وہ ہے. Is it؟ Okay. So داؤد جانتا تھا کہ وہ ٹرانزیشن میں سے گزر رہا ہے. اس کو کہاں پہ جانا ہے؟ پیلس میں. اور وہ پیلس میں نہیں ہے. کتنے لوگ یوں ہی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا سکتا ہے؟ سوچ سکتے ہیں جانے کا؟ مشکل. سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا. چاہ کے بھی نہیں جا سکتے. پتہ نہیں اندر سے کیسے ہوتا ہے، پتہ نہیں زرداری صاحب کیسے دکھتے ہیں، پاس سے کیسے. ٹھیک، لیکن آپ جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے. سیم از دا کیس ود ڈیوڈ. اس کی پلیس کنگ پیلس ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں ہے. اب خدا اس کو پہنچانا چاہتا ہے. جتنی ہائی کالنگ ہوگی اتنا ہی بڑا ٹیسٹ بھی آپ کے سامنے ہے. ریپیٹ 10 دفعہ ریپیٹ کر سکتا ہوں آپ کے لیے، جب تک کہ آپ کے باطن میں بیٹھ جائے. جتنا بڑا بلاوا آپ کی زندگی کے اندر ہے، آپ کا ٹیسٹ بھی اتنا بڑا ہوگا. جتنی بڑی کالنگ آپ کی لائف کے اندر ہے، جس کام کے لیے آپ کو مسا کیا گیا ہے، جتنا بڑا بلاوا ہے اتنا ہی بڑا جولیت بھی سامنے. اب میں بات کی طرف پہنچ رہا ہوں. سو ایک دن جب جنگ ہو رہی تھی فلسطینیوں کے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان، تو داؤد کے بعد یسی نے کہا تیرے بھائی جو جنگجو ہیں وہ جنگ لڑنے گئے ہیں، تو ایک کام کر، روٹی لے ان کے پاس جا، روٹی کا کا پتہ لے کیا وہ کیسے ہے. داؤد صاحب روٹی لیتے ہیں اور جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. میدان جنگ کے اندر جا کے پہنچتے ہیں. سچویشن یہ ہے، 2 پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی پہ اسرائیلی ہے، دوسری پہاڑی پہ فلسطینی ہے، درمیان میں وادی ہے. اور اس ایک شخص جس کا قد 9 فٹ سے بھی اوپر ہے، امیجن، وہ نکلتا ہے، فلسطینیوں کی صفوں کو چیرتا ہے، آگے آتا ہے اور کہتا ہے اے اسرائیلیوں، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو اس کو باہر نکالو تاکہ وہ مجھ سے لڑے. اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر اسرائیلی آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو بڑھ جاتا ہے. وہ کئی دن تک آتا ہے اور یہی ڈرامہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. جیسے اگر آپ شام کو مس کریں تو صبح دیکھ لیتے ہیں. اور اسی اسنا میں جبکہ وہ باہر نکل کے اسرائیلیوں کو چیلنج کرتا ہے، داؤد وہاں پر پہنچتا ہے اور داؤد کہتا ہے لوگوں سے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک فلسطینی ہے جو اس طور سے روزانہ آ کے کرتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جس کا مقابلہ کر سکے. ہم میں سے کوئی نہیں جو اس کا we can't do it. پورا اسرائیل ایک طرف ہے. یہ جولیت نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے. یہ جولیت نہیں بلکہ ایک امپاسبلٹی ہے. رکاؤ گا دوسرے اسرائیل کو، آگے نہیں بڑھ پا. داؤد بولتا ہے، داؤد کہتا ہے یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا اور اس کی فوجوں کی فضیحت کرے. میں نے کہا he dared to open his mouth. اس نے اپنے منہ کو کھولنے کی جرأت. داؤد کو پتا تھا کہ وہ کون ہے. آپ اپنی پاسبلٹیز کو تبھی اپرچونٹی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. نمبر 1 he knew he is an anointed. وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ممسوح ہے. اور سن لیں، اس طرح کے چیلنجز عام لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اس طرح کی مشکلات ممسوحوں کے سامنے نہیں آتی ہیں. سورما ممسوح کے سامنے نہیں آئے گا. سورما چاہے کر اس کا کھوکھا ہے اس کے سامنے کبھی نہیں آئے گا.
Sometimes in life آپ چلاتے ہیں why me؟ میں کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ ہر دفعہ چالیں میرے سامنے کیوں آتے ہیں؟ خدا آپ کو ریکوری کی طرف لے کے جا رہا ہے، خدا آپ کو ٹرانزیشن میں سے گزار رہا ہے، اور جو امپاسبلٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں ایکچولی وہ خدا کی نظر سے دیکھیں تو اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ داؤد کے بڑے بھائی الیاب نے سنا، اس نے کہا تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تیرے دل کے اندر گمنڈ ہے، گمنڈ۔ یہاں پہ میں ایک لفظ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ بولیے کانفیڈنس، پھر بولیے کانفیڈنس۔ کتنے لوگ کانفیڈنٹ ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ مشکل سوال پوچھا میں نے، کتنے لوگ کانفیڈنٹ ہیں، پوری یقین ہے؟ سن لیں جب ممسوح ہوتے ہیں نا تو آپ کانفیڈنٹلی بولتے ہیں تو لوگوں کو آپ پراؤڈ کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک خادم کو سنواتے اس میں کہا کہ ایکچولی when you become confident you look so arrogant to others۔ آپ دوسروں کو بڑے ہی گمنڈی مغرور اور ایروگنٹ لگتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ Keep in mind، آپ کا پورا خاندان ڈرتا، آپ کہتے ہیں no way devil you can't touch، ابلیس تو چھو نہیں سکتا، اور بعض خادم بھی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں آپ نے آپ کی سمجھ۔ اور وہاں پر کوئی چھوٹا سا لڑکا جنگجوؤں کے درمیان کہتا ہے who the hell are you؟ یہ ہوتا کون ہے؟ کس طور سے ماڈرن زبان کا استعمال کرتے، یہ ہوتا کون ہے؟ کس طور سے کون ہے؟ یہ نامختوم، نمبر 1 he knew کہ وہ ممسوح ہے، نمبر 2 اسے پتا تھا کہ میں عہد میں شامل ہوں، اس کا عہد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مختوم میں ہوں، وہ نامختوم ہے۔ Got it؟ کیونکہ حتنا سرکمسیئر کویننٹ کی سیل تھا ابراہیم۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، خدا نے عہد کی نشانی کے طور پہ کہا کہ ممسوح جو ہیں اور یہ جو چنے گئے ہیں یہ مختوم ہیں۔ اب اللہ کیے گئے مختوم ہیں اور دوسرے جگہ میں نامختوم ہے، اور داؤد جانتا ہے کہ خدا عہد اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، وعدے اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، سو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 آپ کو اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، نمبر 2 آپ کو اپنے خدا کو بھی۔ اور داؤد ان باتوں سے واقف تھا، یہ 2 باتیں کافی ہیں۔ اگر آپ خدا کو جانتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں you can make it، آپ کر سکتے ہیں، because one man with God is our majority۔ جو خدا کے ساتھ مقدس طور پر مقصریت ہوتا ہے سبوں پر بھارا ہوتا ہے۔ سو بات آگے چلتی ہے، الیاب اس کو کہتا ہے تو گھمنڈی ہے، تو پراؤڈی ہے، تو ایروگنٹ ہے، تو بڑا سا منہ کھول کے جو مرضی بولتا ہے، لیکن داؤد جانتا تھا کہ وہ کیا بولتا ہے۔ ایک شخص ممسوح ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، باقی کہتے ہیں یہ کیسی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ایسی ہی بڑی باتیں داؤد کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اور جو ممسوح ہوتے ہیں ان کو بڑی ہی باتیں کرنی چاہیے، خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے دنیا آپ کو ایروگنٹ کہے یا پراؤڈ کہے یا جو مرضی کہے، جسٹ اسپیک اٹ، بولیے جو خدا آپ کے منہ میں ڈالتا ہے، رائٹ؟ لوگوں اس کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، دیٹس ناٹ ایٹیٹیوڈ، دیٹس دا ورڈ آف فیتھ، وہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایمان کا کلام، اسپیک اٹ، اس کو بولیے۔ اور داؤد نے کہا، لوگوں نے سنا، داؤد دوسری طرف گیا اور کہا کہ وہاں پر بھی یہی کہنے لگا who is this uncircumcised Palestinian؟ یہ نامختوم فلسطین کون ہے جو میرے خدا اور اس کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے؟ I will face him، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ لو جی، بات نکلتی ہے تو دور تلک جاتی ہے، تو پہنچ گئے کہاں؟ اگر وہ بولتا ہی نہ، وہ بولا کہ ڈیئر ٹو اسپیک، اس نے بولنے کی جرأت کی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ سارے بدروؤں کو نکال رہے ہو اور کسی سے نہ نکل رہی ہو، اور آپ کو خدا نے اسپیشلی گفٹ کیا ہو ڈیلیورنس کے لیے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں یہ سارے تجربہ کار اتنے پرانے بات ہیں، ان سے نہیں نکل رہی، میں جا کے کہوں گی مجھے موقع دے تو یہ پتہ نہیں کیا سوچیں، رائٹ؟ پتا مجھے ہے کہ نکل جانی ہے، میں نے پہلے بھی نکالی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا فیل کریں گے۔ یو آر مسنگ سم تھنگ، آپ کچھ کھو رہے ہیں۔
आप बोल ही नहीं रहे। दाऊद ना बोलता तो बात साउल के कानों तक कैसे पहुंचती? कोई भागा भागा गया, उसने कहा वहां पर एक लड़का आया है, उसका ज़हनी तवाज़ुन शायद खराब है, कमजोर सा है, पतला दुबला सा है, रंग उसका बिल्कुल सुरा है। वो कहता है कि मैं जूलियत को देखूं, जाती जूलियत को देखूं। उसने कहा बुलाओ उसको। आगे की डिस्कशन आपने पढ़ी, बात को मैं शॉर्ट करता हूं। दाऊद को लाया गया, दाऊद से कहा, जब साउल देख रहा होगा, दाऊद एंटर हो रहा होगा, तो मे भी वो भी हंसा होगा कि उसने सही रिपोर्ट दी थी, इसका दिमाग आउट। बाज़ औक़ात मनसूहों की बातें भी दीवानों वाली लगती हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जो कि वो आसमान पर अपने बारे में सुनते हैं, वो ज़मीन की लैंग्वेज नहीं बोलते। कीप इन माइंड, राइट? लोग आपको शुदाई कह सकते हैं, तो कहने दें, वो यीशु को भी दीवाना कहते थे, लोग आपके उस्ताद को भी दीवाना कहते थे, लोग आपको भी दीवाना कहेंगे, लेकिन कोई और दीवाना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं नावल्स पढ़ने का बड़ा दीवाना हूँ, मैं मौसीकी का बड़ा दीवाना हूँ, मैं उस दीवाना होने की बात नहीं कर रहा। मैं उस दीवाना की बात कर रहा हूँ जिसको सुन के लोग आपको ये कहें, आर यू इन योर राइट माइंड? क्या तो अपने दुरुस्त दिमाग में है? Got it? Okay. आगे चलते हैं। साउल कहता है, Are you sure कि तू उस फलस्ती को देख लेगा? उसने कहा, Yes sir, I can do it. मैं आसानी के साथ इसको कर सकता हूँ। Every time David speaks, his confidence looks like arrogance. जितनी दफा दाऊद अपने मुंह को खोलता होगा, साउल भी उसको प्राउड ही समझता होगा। लेकिन साउल कुछ कर नहीं सकता, ना उसकी फौजें कुछ कर सकती हैं। लोगों ने अब सुन लिया है, लोगों के कानों में खबर पहुंच गई है कि किसी ने अपने आप को फ्राहम किया है, कोई बोला है और उसकी खबर पैलेस तक पहुंची है। उसने कहा, I can do it. क्या दाऊद जानता था कि उसका कद 9.5 फुट से ऊपर है? क्या दाऊद ने उसको देखा था? क्या बाकियों ने भी उसको देखा था? क्या बाकी बोले थे? ये अकेला ही बोला था। उनके लिए वो इम्पॉसिबिलिटी बन के रह गई, और इसने इम्पॉसिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। I accept the challenge. I will do it. I will face it. मैं मुकाबला करूंगा। When you stand on your feet, devil trembles. जब आप अपने कदमों पर फर्मली खड़े हो जाते हैं, पुलिस उसी वक्त लड़ना शुरू हो जाता है। Keep in mind. वो आपके कदमों को देखता रहता है। आपके मुंह से ये निकलता होता है, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुंह से जो मर्जी करें, आप जाओ तो पीछे ही रहें। और पुलिस को कहें, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं। आपके कदमों को देखता है। जब आपके कदम आगे तरफ उठते हैं, वो एक इम्पॉसिबिलिटी लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस काम के लिए आप मसा किए कि आप उसके फुल पोटेंशियल के अंदर मूव करें, राइट? सो आपके कदमों की मूवमेंट को देखता है। लेकिन जब आप टिक जाते हैं इम्पॉसिबिलिटी के सामने, he trembles, वो लर्जा खाता है, ये हिल नहीं रहा, या पीछे नहीं जा रहा, ये शेक नहीं हो रहा, इसकी टांग ऐसे ऐसे नहीं कर रही। And the next time when you open your mouth, आप अपने मुंह को खोलते हैं और कुछ फेथ के साथ बोलते हैं, वो सारी हेल की कुव्वतों को साइन कर देता है कि आपके हालात आ जाए। जस्ट आप का एक जुमला कि मैं देख लूंगा उसके किंगडम के अंदर लर्जा पानी कर, वो आपकी बात को सीरियसली लेता है, चाहे आप अपनी बात को बाद में मजाक कर लें। सुन लें, यहां खड़े होकर कहें कि हमने अगले माह यहां पर एक जबरदस्त क्रूसेड को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और लो नई असाइनमेंट कौन करवाना चाहता है? अच्छा, साथ कौन कौन है? ये पकड़ो इनको इस जगह से, हिलने ना पाए, ऐसा फसाद हो कि अगला महीना आए ना, कैलेंडर पे तो आए, ये प्रोग्राम ना आए। आप जब बोलते हैं विद फेथ, मोस्टली बाद में भूल जाते हैं कि आपने कहा क्या था। हेवन को भी याद होता है और हेल को भी याद रहता है। सो यहां पर दाऊद ने जुमला बोला, उसने कहा आई विल फेस हिम, मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या है, और वो जानता था कि उसका खुदा कौन है। एनीवेज, स्टोरी आगे पहुंचती है और दाऊद को सलाह दी जाती है कि सोच ले, और वो कहता है
भेड़ बकरियां चराता हूँ, चरवाहा हूँ, कभी कभार रीछ या शेर मेरे झुंड में से आकर किसी भेड़ के बच्चे को उठा कर ले जाता है, तो मैं जाता हूँ पीछे, मैं छोड़ने वाला नहीं, और मैं जाकर शेर को पकड़ता हूँ। शेर को, किसको पकड़ता हूँ? कैसे पकड़ता हूँ? रीछ को उसकी दाढ़ी से पकड़ता हूँ और अपने बच्चे को उसके मुंह से निकाल के ले जाता हूँ। अगर वो पीछे आए, बदतमीजी करे, तो मुक्का मार के मार देता हूं। अब तो साउल कह रहा होगा कि ये तो गया, he's a nuts freak, शदाई, पागल, बेवकूफ, ऑलराइट। हो सकता है वैसे करके उसको देख रहा हो, उसकी कैबिनेट के अंदर खामोशी होगी उस वक्त, क्योंकि वो राइट माइंड वाली तो बातें कर ही नहीं रहा। अगर आप ममसूम हैं तो दुनिया के मुताबिक आपको राइट माइंड वाली बातें करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप भी वही बोल रहे हैं जो दुनिया बोल रही है, तो आप भी दुनिया में। लोग भी कहते हैं नहीं होना, आप कहते बिल्कुल नहीं होना। लोग तो कहते नहीं होना, आप बिल्कुल ही नहीं होना। ठीक है, कुछ घरों में बदरूही आ जाती है, परेशान करते हैं, खादम कहते हैं मकान बदल दो। होना नहीं जाना, छुट जाओ। It happens। लेकिन यहाँ पर ये शख्स जो है ये कुछ और बोलता है, वो बोलता है जिसको बोलना चाहिए, और उसका बोलना सबको बेवकूफाना अमल ही लग रहा होगा, लेकिन वो बोलता गया। उसने कहा साउल बस तुम मुझे इजाजत दे, जिस खुदा ने मुझे शेर और रीछ के मुंह से बचाया वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। अब साउल के पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो उसको मौका ना दे। उसने परमिशन ग्रांट की और दाऊद को जंगी लिबास पहनाया। वो इतना भारी था कि वो बच्चा चल ही नहीं पाया, वो लड़का चल ही नहीं पाया। उसने कहा ये मेरा लिबास नहीं है, मेरा लिबास कुव्वत का लिबास है, ये आप पहने। कुव्वत का लिबास समझते हैं? जितने बोले उनके पास होगा, वही बोलेंगे ना। मैं आपसे पूछा आपके पास लाख रुपए है, तो जिसके पास है वो ये नहीं। यस। तो मैंने पूछा आपके पास कुव्वत का लिबास है? कौन सा? The Holy Spirit। आपके पास एक लिबास है, वो लिबास कुव्वत का लिबास है, दाऊद के पास था, उसको दिया गया था, उसको दिया गया था। वो पावर उसके पास थी, लोग उसके साथ, एनाइटिंग उसके ऊपर थी, खुदा का हाथ उसके ऊपर था। ये अपने हाथ में एक छड़ी और फलाहन और पत्थरों को अपने बैग में डाले हुए पहाड़ी के सामने पहुंचता है, और दोबारा वो फिलिस्ती आता कहता है इज देयर एनी मेल अमंग यू, एनी वॉरियर, कोई मर्द है तो उसको निकालो मुझसे लड़े। और दाऊद निकल के आता है शट अप। फिलिस्ती भी देखते हैं और इस्राएली भी देखते हैं। इतने दिन खामोशी तारी रही, आज किसने ये हरकत कर दी? दाऊद के अपने भाई जो हैं वो भी देख रहे होंगे कि ये मर गया, लेकिन उसको रोक नहीं सकते, उसके बाद से उसको भेजा। दिस इज टू लेट नाउ। अब उसको रोक नहीं सकते, चाह के भी नहीं रोक सकते। बाद में हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमें बचा लें। हमें बात समझ रहे? जब मैं हिम्मत के अंदर आया तो मेरे वाले साहब ने मेरा सब कुछ करना बदरूहे का निकाला। मैंने कहा वो फिर पीछा एडवाइसेस। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम बच जाएं जूलियत के हाथों से, वो पूरी कोशिश करते हैं। आपके घर वालों ने भी की होगी, अभी भी कर रहे होंगे, पूरी ब्रेकें आपकी खींच रहे होंगे ताकि आप अपनी पॉसिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी के अंदर तब्दील ना होने दे सके। जब हम दुआ नहीं करते कहते दुआ करें, जब ज्यादा तो आगे बोलते नहीं मोड़ तो काम नहीं हो। Am I right? बाइबल नहीं पढ़ते तो कहते हैं लोग ये खुदा का पता ही नहीं है। जब आप खुदा की तरफ कहते हैं खुदा ने और भी काम बढ़े हैं। Am I right? So बात का ऐसे होता है, लेकिन हम उसकी फैमिली भी इसको रोक नहीं सकते, चलो अपने रास्ते पर अपनी मजहब की तरफ जा रहा है। अरे वो फिलिस्ती जूलियत उसको देख रहे, क्या मैं कुत्ता हूं तू जो इस छड़ी को लेकर मेरी तरफ आता है? तेरे हाथ में ही क्या है? असा फलाहन, तो इनको लेकर मेरे पास आता है।
میرے ہاتھ میں جو نیزہ ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے جلاہے کا شتیر ہوتا ہے. Who do you think you are؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ اس کا مذہب کا